Hi, good afternoon, and a warm welcome from me, Anil Manan, back again with a new episode, new native, and a new chart. Panelists are the same. No, there is an addition to the panelists. You'll see the surprise later. One of our panelists, Arunji, was bit busy with coming up with all this audio visual designing and social media. How everything, whatever was required for social media, everything was done by him. He was not there for the initial prediction because he's a guy of Vedic. अरुण जी का एक और चीज है, इज इनटू बार ग्रिडिंग व्हेन पीपल वांट टू डू द वास्तु ग्रिडिंग भी करते हैं. तो दिस इज फॉर ऑल पीपल हु वांट टू गेट द वास्तु डन एंड टू ऑल पीपल हु डू वास्तु. अरुण जी को पकड़िएगा, ही विल डू ग्रिड very well at a very affordable price. So this was about the panelist and me. This new episode is about a lady who wants to know क्या वो occult करे या कौन से direction में अपना career बनाए. She's done her education in occult, but she's a bit confused. She had come to us saying, मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकती हूँ बेहतर. So let's move on. Guys, we have Dipti madam with us. She's from Bangalore and she wants to know कि what would be the best career choice for her. क्या direction होना चाहिए उनके career के लिए. Dipti ji, welcome to the show. Thank you, sir. Thank you so much. Dipti ji, we got fantastic panelists with us. Right, I'll introduce my panelists to you. I got Mangesh Lokhande from Nasik, who would analyze your Namaste, chart as sir. per KP astrology. We got the great Mandip madam. Namaste. Who energy. Pranam. Sorry. We got Mandip ji with us, who would No. be analyzing chart as per the energy, as per the energies in the chart. We got Poonam ji, who's going to tell us per Vastu. We got RS, the Namaste, numerologist, ma'am. right? RS is an invisible guy. You won't be able to see him because we kept him as a secret. We got to reveal him in the end of, when the show's going to end, we're going to be a big revelation. So we'll not waste any time. Let us get directly into prediction. The first prediction as per the energy in the chart would be done by Mandip ji. Mandip ji, Dipti ji is with you now. थैंक यू दीप्ति जी, आपका जैसा अनिल जी ने कहा कैरियर रिलेटेड क्वेश्चन है. नाउ हाँ जी. कैन यू स्पेसिफाई कि कैरियर रिलेटेड क्या? You are working as what, and you are trying to get to which place, I mean which direction you are moving? Ma'am, I'm already in the education sector and I want to go with that sector only. ठीक है, एजुकेशन सेक्टर तो आपका आपके चक्रस के बेस पे शो हो रहा है. ठीक है, आपका Mm-hmm. थ्रोट जो है वो अच्छा एक्टिवेटेड है. एंड आई होप यू आर अ गुड ओरेटर एंड यू कैन मेस्मराइज योर स्टूडेंट्स एंड यू कैन बाइंड देम फॉर अस टुगेदर कि आप उनको जो कह रही हैं वो अच्छा, यही नहीं है कि आप सिर्फ कह पा रही हैं, वो उनके यहाँ भी जाता है. Right. यू आर नोन एज अ गुड टीचर. ठीक है, ये तो Right. एक मैं बेसिक आपकी ट्रेट बता सकती हूँ. देन Mm-hmm. अगर मैंने आपके उसमें से पिक किया है तो देखिए आपके 3 चक्रास जो हैं वो थोड़े से इम्बैलेंस्ड हैं और प्रॉपरली एनर्जाइज्ड भी नहीं है. राइट? Okay. एंड Mm-hmm. बेसिकली अगर मैं बात करूं तो रूट चक्र, बट उसमें बहुत ज्यादा डेविएशंस नहीं है एनर्जी की. हैं Mm. ज्यादा डेविएशंस आपकी अगर हैं तो वो है आपके सोलर प्लेक्सस में और स्वादिष्ठान चक्र, आई मीन हारा चक्र, या जिसे हम कह लेते हैं नेवल चक्र ऑल्सो. ये 2 चक्रास आपके जो है वो ज्यादा इम्बैलेंस्ड है. अब इनके आपके चक्रास की एनर्जी के बेस पे मैं आपका आने वाला पीरियड जो साल 1.5 साल का या अप्रोक्सीमेटली ऐसा है, मैं उसके बारे में आपको बता सकती हूँ. कि जैसे आपका स्वादिष्ठान मैंने कहा, आई मीन हारा चक्र जो आपका है वो आई सेड कि इट इज नॉट दैट एनर्जाइज्ड एंड इट इज इम्बैलेंस्ड ऑल्सो. ठीक है, वो ब्लॉक्ड है. इसके बेस पे मैं ये कह सकती हूँ कि पार्टनरशिप पार्टनरशिप चाहे वो कोई भी हो, बी इट योर स्पाउस, बी इट सम बिजनेस पार्टनर, उनके साथ आपका कुछ ना कुछ इस वक्त डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए. और आपका जहां तक मैं कह सकती हूँ कि आप किसी टेक्निकल नॉलेज या हम कह सकते हैं कोई वोकेशनल नॉलेज, आई मीन इट इज नॉट द रूटीन नॉलेज दैट यू आर गोइंग थ्रू, इट इज समथिंग जिसे हम कह सकते हैं कि
हॉबी कम प्रोफेशन, समथिंग दैट फैसिनेट्स यू, आप ऐसी कोई एजुकेशन ले रही होंगी related to moon, related to your mind, related to your use of your third eye is well activated, जिससे आप जो मैंने बातें कही हैं वो सारी भी एक्टिवेट होती हैं। आपकी थर्ड आई एक्टिवेटेड है, जिसकी वजह से आप जिसे हम कह सकते हैं काउंसलिंग, जिसे हम कह सकते हैं पैसिफाइंग, जिसे हम कह सकते हैं मदर टच, ऐसी चीजें आप में इस वक्त हैं, और ऐसी ही कोई रिलेटेड आप कोई ना कोई लाइन में होंगे। अगर ऐसा चॉइस वाली बात है तो इसका मतलब है कि आपको कुछ नॉलेज तो है, आई मीन बेसिक तो है, सो दैट यू आर ट्राइंग टू गो टू द एडवांस लेवल, एंड दिस ऑल्सो कम्स अंडर मून। नहीं, मैं एक्चुअली ना एक कोर्स ढूंढ रही थी विच इज कम्स अंडर काउंसिल ऑफ इंडिया, सो इट इज फॉर काउंसलिंग in any profession like IT, teacher, student, spouse, person relationship. Absolutely fine for you. Okay. So I was just thinking whether to go with this or not. You surely can. Okay. ठीक है। Fine. अब Mm-hmm. अगर मैं आपके टाइम और आपके सारे उसके बेस पे अगर मैं एक नक्शल में आपको प्रेडिक्शंस देने की कोशिश करूं, लाइक द कमिंग 1.5 year विल बी काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव टाइम, Mm-hmm. फाइनेंशियली भी, नेम एंड फेम भी, ये दोनों चीजें जो हैं वो आपकी अच्छी जाएंगी। ठीक है। Okay. अच्छा, अगर कोई आपकी लिटिगेशन है, हाँ, मतलब मम्मी पापा के हैं, मेरे पे तो नहीं है, मम्मी पापा पे डाले हुए हैं। आपने डाली है, नहीं, मैंने नहीं डाली, मेरे भाई की वाइफ ने डाला है। माय भाई इज नो मोर। ओके ओके, अगर आप उन्हें सपोर्ट कर रही हैं, हाँ हाँ। in case you are supporting them, in case you are a party over there, you will win। ओके। ठीक है जी। उसके जी। बाद है, मैं ये कहूंगी कि इस साल आपका फॉरेन ट्रेवल भी हो सकता है। इफ देर इज एनी प्रॉपर्टी लिटिगेशन यू विल विन। इफ आई एम अ नाउ, पार्टी, यप, I'm not a party in that though, but I mean my both parents are party over there. ठीक है, आप ऐसा है कि अगर लीगली पार्टी नहीं है, Mm-hmm. इमोशनली तो है, Yes, yes, yes. support as much as you can, because then I mean the three of you will win, property Okay, litigation you will win। ठीक, okay. इस वक्त आपके अपने बॉसेस से या हायर अथॉरिटीज से कुछ रिजेंटमेंट भी होगी आपके अंदर, एंड ड्राइविंग पर्टिकुलरली ध्यान से कीजिएगा क्योंकि आपको फाइन कुछ पड़ सकता है। Okay. ठीक है। योर थर्ड आई इज वेल एक्टिवेटेड, जिसकी वजह से मैंने आपको पहले की कई प्रेडिक्शंस दी हैं। मैं यही कहूंगी कि इस वक्त आप इंट्यूटिवली जो भी डिसीजन लेंगी वो सही जाएगा। गॉड्स ग्रेस इज विद यू देयर, वो सही Mm-hmm. जाएगा। अगर आप कोई कह लीजिए कि सोच समझकर या किसी भी तरह अगर आप कोई गलत डिसीजन भी ले लेती हैं तो वो भी उल्टी बाजी आपकी सीधी परमात्मा करेगा और आप जीतेंगे। आई मीन इन एनी केस यू विल हैव गॉड ऑन योर साइड, गॉड्स ग्रेस यू विल हैव Mm-hmm. ऑन योर। ठीक है जी। Okay. देन Okay. अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है तो प्रमोशन है, सेमी गवर्नमेंट, नहीं। चलिए प्रमोशन को हम लेके चलते हैं क्योंकि हमें आपसे पार्टी लेनी है, तो Okay. चलिए। ये बढ़िया रहेगा। क्या प्रमोशन आपकी मुझे फील हुई है आपके सोलर प्लेक्सस से। ऑफ कोर्स आपका सोलर प्लेक्सस वैसे बिगड़ा हुआ है, बट Mm-hmm. आपकी अदरवाइज यू आर अ स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन विद अ ग्रिट, कि Right. एक बार जो ठान लिया, इस वक्त आपका सोलर प्लेक्सस बिगड़ा हुआ है, बट मतलब मैं अगर कहूं कि बेसिकली यू आर अ पर्सन गो गेटर, जिस चीज को ठान लिया वो तो आखिरी सांस तक बस उसी के पीछे है। Right. ठीक है ना, तो मैं यही कहूंगी कि प्रमोशन। अच्छा, एक स्टमक आपका अपसेट रहता है इस वक्त,
हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो रहेगा क्योंकि इस वक़्त आपका सोलर प्लेक्सस बिगड़ा हुआ है, ठीक है? ओके, मैं एक चीज़ और कहूँगी आपसे कि अ, थोड़ा सँभल के रहिएगा, फ़ियर ऑफ थेफ्ट भी है आपके केस में, ओके। हुँ, ठीक है हुँ, ना? अच्छा, हुँ, हुँ। दूसरा है कि एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ इन मतलब as in maybe at workplace, maybe at say domestic front, maybe ओके। emotionally, हुँ, हुँ, ex- extra responsibility will be there with you. ओके। And कुछ स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा। आएगी। अभी अभी कंटिन्यू करेंगे, अभी नींदें उड़ेंगी। तो तो ये 1 डेढ़ साल है आगे का, या मैं तो सोच रही थी बस अब खत्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है। नहीं, अभी 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 हम रातों को जागेंगे। अच्छा। तो उस रातों को कुछ काम में लाया जाए, ऐसा कुछ किया जा सकता है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और थोड़ा सा आप अपने गुस्से पे और स्पीच पे कंट्रोल रखिएगा, यस, क्योंकि बहुत ये ज़्यादा आता है बिकॉज़ एनीवेज़ आई एम काम पर्सन, बट अभी मुझे हर चीज़ पे गुस्सा आता है। क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस बिगड़ा हुआ है, आपको गुस्सा आएगा और आप गुस्से में फालतू बोलेंगे, जिससे आपकी पोजीशन जो है वो बार बार बेचारी डगमगाएगी। एग्ज़ैक्टली हैपनिंग। दिस इज व्हाट आई नो अबाउट यू एज पर योर चक्रा रीडिंग। चलिए ठीक है। पेरेंट्स के साथ आपकी कोई तीर्थ यात्रा है, अगर नहीं की है तो थोड़ा बैग वैग पैक कर लीजिएगा, इस आने वाले साल में आप जाएंगे। हुँ, हुँ, कोई झूठा इल्जाम लग सकता है आप पे, ओके। और घर में कोई मांगलिक काम होगा। जैसे पूजा-वूजा? हाँ जी, कुछ भी समथिंग गुड। यू विल हैव टाइम टू हैव फन एंड फ्रॉलिक विद फ्रेंड्स, हुँ, हुँ, ठीक है? वो भी आपका होगा। और अगर मैं आपको पर्टिकुलरली मैं कहूँगी कि एक ही चीज़ है जो आपके बाकी चक्रस को भी बैलेंस कर सकती है, दैट इज़ क्रिस्टल के हिसाब से मैं कहूँगी कि आप अगर ब्रेसलेट पहने या कुछ भी करें, सेलेनाइट का, पर्ल का, सेलेनाइट का, या ओके, सेलेनाइट, पर्ल और गार्नेट, ओके। ये 3 हैं, ठीक है ना? गार्नेट मैं आपको सैटिन की वजह से बोल रही हूँ, सेलेनाइट और पर्ल तो आप समझ सकती हैं, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ मून, वो हुँ, हुँ, ठीक है ना? तो ये ओके, चीज़ें जो मैं आपके बारे में बता सकती हूँ, आपके एनर्जी रीडिंग के बेस पे, ओके। ठीक तो है? मैम ये पर्ल का जो नेकलेस है ये पहनना पड़ेगा, या बैंगल्स भी हो सकती है पर्ल की? आप ब्रेसलेट पहन सकती हैं इस तरह से, ओके, ब्रेसलेट्स मिलते सेलेनाइट के भी मिल जाएँगे, ओके। पर्ल का भी मिल सकता है आपको, उसके बाद हुँ, हुँ, क्लियर का भी मिल सकता है, गार्नेट का भी मिल सकता है। कई बार ये ओ मिक्स्ड भी मिल जाते हैं, अगर हम स्पेशली चाहें तो ये मिक्स्ड भी मिल जाते हैं, तो आप वो पहन सकती हैं, राइट? ओके, 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 उसमें एक चीज़ अगर आप ऐसे चूज़ करने लगेंगी तो उसमें एम्बर ज़रूर ऐड करवा लीजिएगा, फॉर योर इमोशनल हेल्थ, ओके, इमोशनल क्रिएशन, क्रिएटिविटी, ओके। राइट? जी, हुँ, 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 बस मैं ये ओके। अपने तौर पे मैं यही कहना चाहती थी आपसे। नाउ थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वेल ओवर टू अनिल जी। You know, thank you. You know, Dipti ji, you're very lucky, man. इतने थैंक यू एपिसोड सो शूट किए ना आप अकेले, नहीं आप अकेले किस्मत वाले हो। कैरियर के अलावा भी इन्होंने आपके लिए प्रेडिक्शन कर दिया, सोचो। यस, टॉपिक वाज कैरियर बट शी लॉ ऑपरेटेड। यू वेरी लकी विद दैट गर्ल, सीरियसली। यस, यस, आई This फील is लकी। what I call bias, no? A lady supporting a lady. You're the first lady who's come. नहीं So ऐसा नहीं, I'm going to raise this issue. I am going to raise this issue in the parliament. Done. How can it be possible? Sorry. Mandeep ji, thank you. Thanks a lot. That was awesome. That was really awesome. दीप्ति जी, वास्तु के हिसाब से बताएंगे कि क्या करना है आपको, what you have to do as per vastu to हुँ, basically, हुँ। to freeze up a direction in your career. So that would be done by Poonam ji, Dipti madam. हेलो मैम, नमस्कार दीप्ति जी, हुँ, हेलो, कैसे हैं आप? एकदम मज़े में मैम। जी। सो दीप्ति जी, आपका स्टार्ट करने से पहले थोड़ा-सा मुझे कुछ आप अपने मुँह से बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं?
वास्तु के बारे में अपने आप से, अपने घर से रिलेटेड? मैम सबसे बड़ी बात, मैंने जब मतलब वास्तु के बारे में पढ़ा था, तो मैंने एक चीज़ देखी कि मेरे घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मेरा टॉयलेट पड़ता है। तो उसमें मैंने देखा कि उसपे मैं कोई चेंज नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने बिल्कुल वास्तु में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया। बाकी मेरा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो टॉयलेट है, उससे लग के जो दीवार है, उसी से लग के मेरा पूजा घर भी है, बाहर की साइड। मतलब वो दीवार में थोड़ा-सा डिस्टेंस है, बट है उसी कोने में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ओके। देखिए, आपने जो भी ग्रिड कराया है, या जैसे मैं 81 पद का ग्रिड देखती हूँ, तो मैंने हुँ, आपका घर नहीं देखा है, बट मैंने नोट हुँ। डाउन किया हुआ है एज़ पर योर चार्ट। आप जो ओके। नॉर्थ ईस्ट में बोल रहे हो, आपका टॉयलेट और पूजा हाँ, हाँ। घर, ये नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट आपके घर में है, नॉर्थ ईस्ट का नहीं है, राइट। राइट? और पूजा घर जो आपका, वो उससे सटा हुआ है, नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के कंबाइन वॉल पे आएगा, हाँ, 110%। ठीक है? येस। तो ये चीज़ आपको मेंटल स्ट्रेस दे रही है बहुत ज़्यादा, हुँ, हुँ। राइट? तो देखिए, इसका उपाय तो हम आपको पता ही है कि हम नहीं देते। हाँ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का हम ट्रीट करते हैं, बट नॉर्थ ईस्ट का तो हम नहीं देंगे। बट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आपका है, तो विल आई विल श्योरली गाइड यू कि आप कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं। हाँ जी। तो एक प्रॉब्लम आपकी यही है, जैसे ही आप इसको भी ट्रीट कर लेंगे, तो आप खुद ब खुद क्लियर हो जाएँगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। हुँ, आपको हुँ। अपने आप से अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलेंगी कि आपको ऑकल्ट में कौन-सा फ़ील्ड चूज़ करना है, एजुकेशन में आपको कौन-सा फ़ील्ड चूज़ करना है, जो डाउट आपके हमारे लिए हैं। तो हुँ, ये हुँ। यहाँ पर जैसे ही आपका बैलेंसिंग होगा, ये वाला ज़ोन, ऑलमोस्ट आपका प्रॉब्लम यहीं से खत्म हो जाएगा। ठीक है? ओके। दूसरा, आपका चार्ट में जो एक योग है, जिसकी वजह से आइडियाज़ आपको बहुत इनोवेटिव भी आते होंगे, बहुत ही अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ आते होंगे, हुँ, हुँ। राइट? बट उनका इम्प्लीमेंटेशन जब आप करते हैं, तो वहाँ कुछ गड़बड़ होती है होते ही नहीं। और नहीं होते हैं। जी, जी, जी। राइट। सो इसके लिए ना आपको अपना साउथ ईस्ट की तरफ का जो एरिया है, हुँ, हुँ। वो क्लियर करना पड़ेगा। वहाँ पर आपका कुछ ना कुछ डिसबैलेंस मिलेगा। अब साउथ ईस्ट के डिसबैलेंसेस आपको पता ही होंगे। वाटर बॉडीज़ वहाँ आ सकती हैं, ग्रे कलर, वाटर कलर्स, स्पेस वहाँ पर आ सकता दीवार है। भी ग्रे कलर लगा है मैम, हाँ, साउथ ईस्ट की। यस। तो वो आपको देखिए, बाकी इन जनरल अगर हम बात करते हैं, तो साउथ ईस्ट को हम फाइनेंस के लिए पकड़ते हैं, बट हुँ, हुँ। आपके चार्ट में वो जो हम फाइनेंशियल फ्लो साउथ ईस्ट से देखते हैं, वो आपके चार्ट में आपका जो आइडियाज का फ्लो है, जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है, वो रोक रहा है। ओके। वो जैसे ही क्लियर होगा, आपका फाइनेंस भी इम्प्रूव होगा वहां से। वो बच्चों का बेडरूम है मैम, साउथ ईस्ट में पड़ता है वो। ओके। तो उसको आप चेंज करवाइएगा, ग्रे कलर को वहां से, बिल्कुल एंटी रहता है। उसमें बुद्धा का फ्रेम लगा है, बड़ा-सा। वो भी एंटी है वहां पर, ओके। क्योंकि बुद्धा, तो आप देखिए, गौतम बुद्ध क्या संदेश देते थे? शांति का, शांति। मेडिटेशन का। और हुँ, साउथ हुँ। ईस्ट जोन हमारा क्या है? अग्निकोण है, अग्नि का जहाँ है। से, और उसके साथ लगता ही एसएससी, जहाँ से हमें पराक्रम, अपनी बुद्धि, अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट कैसे करें, अपनी पावर को कैसे हम देखें। तो वहां हुँ, पर हुँ। हमें कोई भी ऐसा मोटिवेटर, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं या हनुमान जी हैं, उनके पोर्ट्रेट अगर हम वहां लगाएंगे, तो वो 100% रिजल्ट देंगे, क्योंकि उस दिशा को वो डिनोट करते हैं। राइट, उनका राइट, काम राइट। वो दिशा बताती है। हुँ, हुँ। तो वो दोनों की दोनों चीज़ें वहाँ पर एंटी आ रही है, आपका कलर भी और गौतम बुद्धा भी। तो दोनों ही आपको वहाँ से हटाने पड़ेंगे। उसके अलावा आप अपने घर में सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन इंटीरियर में 100% मिलेगा। ये हो सकता है आपका ब्लैक कलर के साथ ब्लैक एंड व्हाइट कलर घर में हो, और स्पेशली आपका नॉर्थ में, अगर मैं बोलूँ, ब्लैक एंड व्हाइट कलर या उससे रिलेटेड ज़िग-ज़ैग पैटर्न या कुछ भी ऐसा आपको वहाँ मिले। ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं है, ब्राउन है, डार्क ब्राउन है एंड प्योर व्हाइट कबर्ड्स रखे हुए हैं। स्पेशली ओके, एट एंट्री में व्हाइट रखा है पूरा। ओके,
ठीक है, घर की एंट्री के बाहर व्हाइट है, घर के अंदर आते से डार्क ब्राउन है। राइट। तो आपको ना ये कॉम्बिनेशन जो है इंटीरियर में बिल्कुल आने नहीं देना है। ब्लैक एंड व्हाइट आप कभी कुछ भी नहीं रखिए घर में। ओके। ये आपको ब्रेक ही करना पड़ेगा। आप पसंद भी करते होंगे, ब्लैक एंड व्हाइट कलर आप ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। यस। हाँ, तो वो भी आपके देखिए, इसमें अगर मैं बोलूँ जो आप बताना चाहते हैं लोगों को, जितना आप सिखाना चाहते हैं बच्चों को, उसमें भी वो ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है कहीं न कहीं, अगर आप इस कलर को अपने माइंड में रखेंगे। तो ट्राई टू रिमूव इट फ्रॉम योर माइंड एज़ वेल। अगर आप उसको फिज़िकली अपने घर में नहीं ले रहे हैं, तो आप सबकॉन्शियसली उसको अपने माइंड के अंदर कैरी कर रहे हाँ, हैं। क्योंकि तो यू कपड़े शुड पहनती रिमूव हूँ मैं फ्रॉम तभी। देयर एज़ वेल, क्योंकि सबसे ओके। पहली चीज़ हमारे माइंड से ही स्टार्ट होती है। हुँ। ठीक है। और एक और चीज़ की कन्फर्मेशन मुझे चाहिए कि आपको बहुत लग्ज़ूरियस घर रखने का शौक है, पसंद करने का। आप आर्टिफैक्ट्स जो लाते होंगे कुछ भी, वो एंटीक में लाते होंगे, बट बहुत रिच लुकिंग चीज़ें आपको पसंद आती होंगी। घर आप वैसे रखना चाहते हैं। हाँ जी। ओके, राइट। सो यो चार्ट का बीटीआर भी हो गया आपका, और जो मैंने अपने वास्तु के अकॉर्डिंग आपके घर में चूज़ किया, वो सारी चीज़ें मैच हो रही हैं। सो बेसिकली जो मैंने बताया, आप उन चीज़ों को ठीक करिए। आपका सारा का सारा फ्लो जो आप चाहते हो लाइफ में, वो मिल जाएगा आपको। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैम जो आपने बोला है ग्रे कलर रिमूव करना है, वहाँ पे कौन-सा कलर आएगा फिर? रेड और पिंकिश टाइप इस काइंड ऑफ? हाँ, रेड और पिंकिश ले सकते हो, नहीं तो न्यूट्रल कलर हमारा होता है ऑफ व्हाइट कलर, बेज कलर आप ओके, कहीं पर भी दे सकते हैं। ओके। अब इसके बाद जो डिपेंड करता है कि हमारा ग्रिड क्या है, क्योंकि वास्तु हमेशा ग्रिड के ऊपर होता है, ग्रिड चार्ट पे, बार चार्ट पे। सो उसके अकॉर्डिंग एरिया भी देखना पड़ता है आपके घर में, वो कितना परसेंट आपको मिल रहा है, वहाँ पर यूटिलिटीज़ क्या है, या फिर वहाँ पर जैसे आपने बताया बच्चों का कमरा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम कलर कॉम्बिनेशन सेट करते हैं। ओके, ओके। सो यू सजेस्ट मी टू डू ये ग्रिडिंग जो भी करनी चाहिए मुझे? क्योंकि मुझे कॉन्टैक्ट मिला 100%। बट मैंने दिल पे लिया नहीं वो, मतलब सोचा कि हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ निकल आएगा क्योंकि ये चीज़ मुझे पता थी। तो आई डिडन्ट गो इंटू, क्योंकि वैसे ही मेंटल पीस हिला हुआ था तो मैंने कहा ठीक है और घुसते नहीं है इसमें। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, अगर हम एक ज़ोन को बैलेंस नहीं कर सकते, तो वास्तु में बहुत ही बड़ा एक रोल होता है एक्सिस का, राइट। डायगोनल एक्सिस का। अगर हुँ। हम उसके एक्सिस को भी बैलेंस कर देते हैं, तो कहीं न कहीं हमें दूसरे डायगोनल के भी रिज़ल्ट पॉज़िटिव मिल जाते हैं। तो अगर आपके घर तक, आपके माइंड तक वास्तु आया है, एस्ट्रोलॉजी आई है, या ऑकल्ट का कोई भी फ़ील्ड आया, दैट मीन्स कि वो यूनिवर्स आपको ऑफ़र कर रहा है, और यू शुड यूज़ दैट थिंग। श्योर मैम, जितना आप श्योर। अवॉइड करेंगे, आप उतना उस चीज़ के अंदर जाते जाएँगे। तो उसको प्रॉब्लम ना क्रिएट करके एक सॉल्यूशन मान के उसको आप सॉल्यूशन। अडॉप्ट कीजिए, यू विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। श्योर मैम, श्योर, श्योर। और ग्रेडिंग थैंक यू सो ग्रेडिंग मच। के लिए हमारे एडमिन साहब अरुण जी हैं, वो बहुत अच्छी ग्रेडिंग करते हैं। मेरी सारी की सारी ग्रेडिंग मैं उन्हीं से ही करवाती हूँ, तो अप टू द मार्क वो मुझे काम करके देते हैं। तो ही इज़ वेरी गुड एट इट। ओके मैम, श्योर, श्योर आई विल गेट इट डन। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। दीप्ति जी, ये कैसा हाँ जादू जी। करते हैं ना ये लोग। ये कैसा जादू है, सोचो। एक लेडी अमृतसर में बैठी है, वो आपके एनर्जी और चक्रास के बारे में बता, जो आपको मिले ही नहीं है। दूसरी लेडी पानीपत में बैठी है, शायद पहली बार ही मिल रहे हो, वो आपका पूरा घर के बारे में बता रहे हैं। राइट, दिस इज द पावर ऑफ आवर शास्त्र। एग्ज़ैक्टली शास्त्र सर। कितना सुपर्ब होगा, सोचो। पीपल हु हैव नॉट मेट, distances of 3000 kilometers, still the prediction is bang on. राइट सर। I'll tell you one more thing. Before doing anything in Vastu ना, मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको if there's an आपको बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है, 3-4 दिन होगा, तो आप क्या करते हो सबसे पहले? बॉडी रिपोर्ट निकालते हो ना, ब्लड रिपोर्ट निकालते हो, राइट, ब्लड राइट। रिपोर्ट। वास्तु भी हमेशा इसी तरह से देखना यही चाहिए। होता है, एग्ज़ैक्टली। सबसे पहले ग्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ। मेरा घर का एंट्री साउथ वेस्ट है। जब ग्रिड होता है ना, तो एवरीथिंग इज डिफरेंट। So हुँ, what happens is एग्ज़ैक्ट। that no, then we start using our brain. Southwest है, अच्छा तो ये कर लेते, तो indirectly we start hurting ourselves. So what she said is right. Arunji is very good in grading. So get it हुँ, done if हुँ। you the grading. So that would actually allow Poonam to clear a lot of things in a better manner, राइट, राइट सर। right? येस, So that was येस। that was Vastu prediction for you. Now we go to KP astrology. He is Mangesh Lokhande from Nasik.
is into KP astrology for more than 5 years. Fabulous, awesome, stunning predictions. Mangesh ji, please. नमस्ते सर. ओके, सॉरी. नमस्ते दीप्ती जी. नमस्ते सर. तुम्ही महाराष्ट्राच्या आहेत का? येस सर, नगरची आहे, अहमदनगर. नगर. ओके ओके, थैंक यू. बरं, ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट. आपने जो बेसिक क्वेश्चन पूछा है कि आपको करियर के बारे में जानना है. हाँ जी. ओके, बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि आपके करियर रिलेटेड जो जनरली हम केपी से देखते हैं, दैट इज कॉल्ड, जो डोमेन है, दैट इज हाँ, हाँ. योर इज सैटर्न. सैटर्न जो है, सैटर्न भूमि कारक का भी कारक माना जाता है, लैंड एनर्जी का भी कारक माना जाता है. और आपका जो सैटर्न है, सैटर्न आपको नंबर्स जो दे रहा है अभी, वो है 1 12 6 7. ये इंडिकेट कर रहा है कि सैटर्न से आपको जो है बहुत धन मिलेगा, नो डाउट. इंडिपेंडेंट बिजनेस जहां पे आप सर्विसेज ऑफर करोगी, हम्म. ओके, उसमें आपको ये है. अभी उसका जो एनएल है, नक्षत्र स्वामी जो है, वो है चंद्रमा. चंद्रमा दे रहा है 1 12. ओके. आप बर्थ प्लेस से अभी बेंगलोर में हो, इट इज वेरी गुड साइन. आप जो मन में चाहोगे वो काम आपका हो जाएगा. मून जो है मन का कारक है. आप जो एक बार ठान लेती हो वो आप करके ही रहती हो. तो मून से रिलेटेड अगर आप वो डोमेन जो है, अगर आप कोई भी काम करते हो, और मून से रिलेटेड सबसे बढ़िया काम है ऑकल्ट. ऑकल्ट है, टीचिंग भी हो सकता है, लेकिन ऑकल्ट जो है सबसे बढ़िया है. आपका ट्राइन भी अगर देखा गया 2 6 10 में भी जो है, आपको केतु, गुरु, चंद्र और मंगल, ये इतने बढ़िया प्लैनेट्स यही बता रहे हैं कि आप ऑकल्ट फील्ड में आ जाइए, और पर्टिकुलरली वास्तु में आ जाइए. क्योंकि मंगल जो है, मंगल भी आपको बता रहा है, सैटर्न भी बता रहा है कि यू कम इनटू ऑकल्ट फील्ड. ऑकल्ट ओके. फील्ड आपके लिए बहुत बढ़िया है. और देखिए, आपकी अभी अंतरदशा जो चल रही है, दैट इज शुक्र. शुक्र भी जो दे रहा है, शुक्र का भी नक्षत्र स्वामी शनि है. देखो कनेक्शन, देखो कैसे बन रहा है. नो वंडर आप ऑकल्ट्स में अट्रैक्ट हो रहे हो. और क्योंकि क्या है, देखो कुछ चीजें जो है ना, हमें इंडिकेशन मिलती है, वैसे ही आपको ये इंडिकेशन मिल रहा है कि आप ऑकल्ट फील्ड में आ जाइए. क्योंकि अभी जो टाइम फ्रेम है, शुक्र भी आपका जो दे रहा है 1 11 6 7 3 10, मतलब वो भी जो है यही बता रहा है कि ये फील्ड से आपको बहुत पैसा, नाम, शोहरत मिलने वाली है. इसका भी, शुक्र का भी जो राशि स्वामी है केपी के हिसाब से, वो भी बीच से देखिए कौन आ गया, मून. सब राइट. बात वहीं पे आ रही है. तो वो घूम फिर के बात वहीं पे आ रही है. अभी देखिए, आपका जो मेन फाइनेंस या फिर जो इनकम रिलेटेड जो भी है, वो भी देखा जाता है वो 6th हाउस से. 6th हाउस भी देखिए सरप्राइजिंगली आपका सैटर्न ही आ रहा है. आप जो भी काम करोगी, आपको उसमें सक्सेस मिलना ही. ये जो है, इसको इनडायरेक्टली कहते हैं कि आप पे एक डिवाइन हाथ है. वो तो मैं मानती हूँ सर. हाँ, ये भी एक इंडिकेशन है. आप जो कर्म करोगी, उससे आपको पैसा मिलेगा. इतनी गारंटी है कि आप कोई गलत कर्म नहीं करोगी, ये भी है. तो Good. सैटर्न जो है वो एक तरह से सेवा है, पब्लिक की सेवा है. आपको उसमें बहुत नाम और फेम मिलने वाला है. वो भी अभी जो अपना पूरा ऑकल्ट फील्ड जो है, ऑकल्ट फील्ड बहुत बड़ा है. उसमें अगर हम कट शॉर्ट करके देखेंगे, तो आपका 4th लॉर्ड, मतलब चौथे घर का स्वामी जो है, वो भी ट्राइन में आ रहा है, दैट इज मंगल. वो बैठा है 10वें घर में. वो भी वही बता रहा है कि आपका ये. सेकेंडली, आपका मंगल जो है वो अनटेनेंटेड है. अनटेनेंटेड का मतलब आप समझ सकती हो, विच इज वेरी 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 पावरफुल. और उसका ऊपर ऊपर नक्षत्र स्वामी जो आ रहा है, वो फिर से देखिए सैटर्न ही आ रहा है. देखिए, सी द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी. वो फिर से आपको वहीं पे लेके आ रहा है कि आपको काम इससे रिलेटेड अगर आप करते हो, 110% आपको उसमें सक्सेस है, नाम है, फेम है, पैसा है. सर ये आप ऑकल्ट के लिए बोल रहे हैं ना? जी. अगर मून मैं रिलेटेड आप कंस्ट्रक्शन. कोई भी काम करते हो, मून रिलेटेड. अच्छा, मून रिलेटेड. ओके. हाँ, तो मून रिलेटेड काफी सारे काम है. दूसरा एक है, देखिए आपको काफी सारा एक सजेशन है मेरा. आपको मून और सैटर्न आपके कंबाइन है.
एक ही घर ओके, में बैठे, दैट इज इन सेकंड हाउस। सेकंड सेकंड हाउस में। हाउस कहा जाता है पैसे का घर। हाँ, वो जो है, अगर आप जितना ट्रैवल करोगी, आपको पैसा उतना आते रहेगा। ट्रैवल भी किस लिए? काम के लिए। वो फिर आपका कोई भी काम हो, काम के इसके लिए आप जितना ट्रैवल करोगे, आप लिख लो लिटरली उतना पैसा आपको आते रहेगा। आपको कभी ये नहीं रहेगा। और एक प्लस पॉइंट आपके इसमें चार्ट में क्या है, आपका गुरु शनि है। आप हम्म, कभी खाली नहीं बैठोगे, जिंदगी भर में आप कभी खाली नहीं बैठोगे। आप काम छोड़ना भी चाहो ना, काम आपके पास आते रहेगा। इतना बढ़िया राइट, चार्ट है आपका। ये आप तो है फिर। छुट्टी, हाँ, आप छुट्टी भी मांगोगे ना तो भी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि काम आपके पास आते रहेगा। ये है। ये आपका चार्ट का ब्यूटी है, क्योंकि क्या है, और वो जो है, आप सभी को सलाह बहुत परफेक्ट दोगी, परफेक्ट दोगी। ये 100% है। और उसके लिए जो है, देखो, ये सब जो आता है इनडायरेक्टली, सब कनेक्टेड जो है, ये सब चीजें ऑकल्ट की तरफ ये करे, क्योंकि ये डिवाइन साइंस है। डिवाइन साइंस आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप जो है, नाउ इट इज टाइम। जैसे कहा जाता है कि सैटर्न जब भी अटैच हो जाता है, वो आफ्टर 30 वो एक्टिवेट हो जाता है, और 30 के बाद आपकी वो ग्रोथ होना शुरू होती है। राइट, इसमें और एक प्लस पॉइंट ये है कि 112 जो है, वो ये भी बताता है कि आप आपके जन्म स्थान से जितना दूर हो, अभी जनरली देखो, नगर और बेंगलोर में कम से कम मेरे ख्याल से 700-800 किलोमीटर का ये है। और और दूसरी बात क्या है, वो कल्चर भी अलग है। हाँ, तो वो आपको वो जगह जो है, वो बहुत बेनिफिशियल है, जबरदस्त बेनिफिशियल है। आप वहां से ही काम शुरू कर दो, घर से भी काम शुरू कर दो, आपको जबरदस्त पैसा मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। आप लिख लो। राइट दिस इज सर। फ्रॉम, पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हो। ओके सर, मैं अभी तो ट्यूशन ले रही हूँ और मैं कभी आज तक खाली नहीं बैठी हूँ। जब से मैं एजुकेशन में खुद ले रही थी तब से ही मैं ट्यूशन ले रही थी, तो मैं उसी फील्ड में रही हूँ, कभी खाली नहीं रही। हमेशा मैंने सिखाया ही है बच्चों को, और कई गरीब बच्चों को भी सिखाया है, पैसे नहीं लिए उनसे, उनकी भी मतलब बहुत अच्छे से सिखा के उनको भी आगे बढ़ाया है। वेरी गुड। इनफैक्ट मैंने ही लगाए हैं, तो मतलब बड़कपन की बात नहीं है, बट बच्चे जिनको मैंने सिखाया वो काफी अच्छे पोस्ट पे भी चले गए हैं। नो वंडर। आपका मंगल जो है वो 4-9 दे रहा है, मतलब आप बहुत जबरदस्त लेवल के टीचर हो। आप सीखते भी हो, तो मतलब वन स्ट्रोक, आप एक बार भी कुछ पढ़ लेते हो तो आपको इमीडिएटली आत्मसात हो जाता है। यस, आपको मतलब बाकी के लोगों के जैसा रट्टा नहीं मारना पड़ता, आपको एक बार बता दिया, आप समझ जाते हो। समझ जाती हूँ, राइट। हाँ, और बट सेम हाल मैनर में फिलहाल आप की, सामने भी पढ़ाते हो। राइट, मतलब हाँ, मैं जैसा बच्चा हो उस हिसाब से समझा के कुछ ज्यादा इलाबरेटेड बताती हूँ कि कई बच्चे सुनने के उसमें नहीं रहते हैं, हम्म, बट फिर भी मेरी गाड़ी चालू रहती है कि सुनता रहे, कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में yes, जाएगा। हाँ, तो इसी में मुझे करना है एक्चुअली सर, एजुकेशन में ही मुझे कुछ आगे करना है। ओके। देखिए, फोर्थ अगर आपका मंगल है, एजुकेशन में आप ऑकल्ट भी सिखा सकते हो। ओके, ये भी एस्पेक्ट आ सकता है, क्योंकि देखो, आपका मंगल जो, मंगल का राशि स्वामी शुक्र है, नक्षत्र स्वामी खुद मंगल है, और फिर से उप नक्षत्र स्वामी जो है सैटर्न है। ओके, तो वो तो प्रोफेशन के साथ अटैच हो गया। तो राइट, आप राइट, जो है, ये टीचिंग भी कर सकते हो। और उसका उप नक्षत्र स्वामी जो आ रहा है, वो राहु, वो भी आपको बहुत बढ़िया नंबर दे रहा है, 1-11-7। तो ये भी आपको बोल सकता है कि आप घर बैठे भी ऑनलाइन पढ़ाओगी तो भी आपको बहुत जबरदस्त बेनिफिट और नाम और फेम मिलेगा। मिलेगा, राइट। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है, ऑकल्ट चाहता है कि आप ये लाइन में आ जाओ। आप शुरू कर लो, आपको उसमें अपने आप मार्ग मिलते जाएगा। और एक स्टेज के बाद आप खुद बोलोगे कि यस, क्योंकि कैसे, केतु भी आ रहा है, सैटर्न केतु जो है, आपको एक अप टू 40-45 ईयर्स जो है, वो जो रेगुलर जो प्रोफेशंस होते हैं दुनिया के, वो हाँ, हाँ, शुरू होता है। लेकिन आफ्टर 40-45 ईयर्स आप धीरे धीरे ऑकल्ट की तरफ खुद खींचे होके चले आओगे। ओके, ओके, श्योर, श्योर, आई विल गो विद दिस। यस, ओके, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Hmm. दीप्ति जी, that was मंगेश जी with KP Astrology. अच्छा दीप्ति जी, यस, मुझे एक चीज पूछना था आपसे। हाँ Like I जी। just wanted to ask myself. हम्म, आप ये टीचिंग लाइन में हो, राइट? हम्म, हम्म, तो
नेम फेम तो अच्छा मिला होगा, लोग जानते तो होंगे कि दीप्ति जी इज अ गुड टीचर नाउ, यस, यस सर, बट एज अ टीचर तो नाम बट मिला है। हाँ, बट इनकम नहीं मिला होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इनकम के हिसाब से आपको कम मिला, ऐसा कह सकते हैं? हाँ सर, मतलब मैंने कभी ना ऐसे पैसा सोच के नहीं किया कभी कुछ, हाँ, तो नहीं किया एक्सपेक्ट बट नहीं था, इसलिए ज्यादा नहीं हाँ, हुआ। हाँ बट हाँ, बाकी लोग बोलते हैं हाँ, ऑब्वियसली कि इतना अच्छा टीचर हाँ, होने के बाद हाँ। होना चाहिए था। You know, people would be saying that she's so good, but she's not getting the due what she wants, what she should get. That, राइट। because you know your chart says that. See, you are an excellent teacher. You're born teacher. Why? हम्म। Because आपका लग्न 11th हाउस में बैठा है, सूर्य, राइट? सूर्य जुपिटर के नक्षत्र में, राइट? जुपिटर आपका फिफ्थ का लॉर्ड है। फिफ्थ हाउस इज गिविंग टीचिंग एंड टेकिंग लर्निंग आल्सो, राइट? राइट। So everything is making you a good teacher, right? Saturn कर्म का जो planet है, that करेक्ट। is with Jupiter. So that again says कि you know teaching का कर्म अच्छा रहेगा. But second का lord जो Mercury है ना, मूल त्रिकोण राशि का Mercury, that is with Surya. It is good. It is in his own house, but it is in the nakshatra of बाधक मंगल. तो मंगल की जो बाधा है ना, वो आपको पैसा ड्यू इतना नहीं दिलाते। नेम फेम देता है सूर्य, बट वो नेम फेम से जब आदमी कंपेयर करता है तो होता है यार इनके इतना ना अच्छी है, बट वो हिसाब से शी इज गेटिंग वेरी लेस। दैट स्टेटमेंट विल बी ऑलवेज देयर, राइट? राइट। नाउ राइट। हाउ कैन दैट स्टेटमेंट बी इरेडिकेटेड? आई विल टेल यू हाउ। योर जुपिटर सिटिंग इन द सेकंड हाउस, right? राइट। Jupiter is the lord of your 8th house. So if you start occult teaching, that will get ओके। eradicated and you will get good money, and people will say she is good and she is earning good. This is 100%. This is how you align a chart, ओके। श्योर सर, right? श्योर। So this is like a small thing what I wanted to tell. अच्छा, अभी आपके मॉम की तबीयत कैसी रहती है? She's got pain in the legs, feet, या feet, लेग्स, हैंड, feet, यस। feet. Yeah, because फीट only में because भी of है, the एंकल में है, मतलब अभी तो वो खैर अभी तो चलते चलते गिर भी पड़ी तो यस, या उनको है, वो नी आप में भी पेन है। नो गायनेक इश्यूज ना, नो, टिल बट नाउ मतलब हो चुके वो, अभी तो नहीं है कुछ। हाँ, वो हो चुका है। बाकी फीट का इश्यू है, बिकॉज दैट इज बिकॉज योर अंतरदशा, योर ओके। अंतरदशा इज 12 to 4th house, so that is feet of ओके। your mother, मदर। right? So Venus, so means this is how you see a chart and you come to know, okay, you know what can be done for a better direction, right, in your career. So now the next prediction would be done by our numerologist, right? So RS, now it is the ball is in your court, sir. हेलो दीप्ति जी, सॉरी मेरा हेलो। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाता हूँ। मैं करूंगा तो फिर वो ऑडियो नहीं जाएगा। ओके, नो आई नो, प्रॉब्लम सर। आई थिंक मनदीप जी, पूनम और मंगेश जी ने काफी आपका कुंडली का ड्रिलिंग किया हुआ है, तो हाँ जी सर। डिफरेंट डायमेंशन बट सभी वहीं पे आ रहे हैं। तो न्यूमरोलॉजी, एज यू नो वी प्ले विद द नंबर्स, राइट। हम वो प्लैनेट हमारे भी होते हैं, न्यूमरोलॉजी में भी होते हैं, बट दे आर नॉट इन अलाइन विद व्हाट द केपी, वैदिक एंड those kind of thing, irrespective of that. Um, well, I heard you want to make a career in teaching. You are doing those kind of thing. But tell me one thing. Uh, it was after marriage or even before marriage also you wanted to become a teacher? Always. Before Always? marriage also, I was taking tuition. When I was in my college, undergraduates, since then I'm taking tuitions. So I Okay, wanted to be, and I have worked as a lecturer, teacher, everything I have done. good. So, okay, I'll tell you. Your first primary number is 8, which is number of Saturn in the Right. numerology, and your complete number is 7, whether it's Ketu, which is Right. number of occult. Okay, Right. so you are born with these two combination. So ये आना ही था आपको, जाते नहीं जाते उधर जाना ही था. But because of number 8, you are bit what do you call, a tough lady, workaholic. Let me put it workaholic first. वर्कोहॉलिक किया। हाँ, बिकॉज जब आप बोल रहे थे ना काम आता रहता है, आई थिंक आप काम इतना करते रहते हो कि काम आता रहता है। राइट। हाँ, तो मतलब इट्स ब्रेक भी लेना सोचो तो नहीं मिलता है, मतलब टुडे आल्सो आई वाज थिंकिंग कि आई विल टेक रेस्ट, बट नहीं होता वो है आपको होगा मतलब नहीं, पूरा नेचर कुछ नहीं, होता है।
वो आपका नंबर है, वो आपको वर्कहोलिक बना के रखेगा। बट आर यू बिट व्हाट यू कॉल टफ लेडी mentally? Yeah, I mean, Yeah, mentally strong. Yeah, mentally strong. you're very adamant, and you don't trust others. By the way, you trust Uh, very. You take time to trust others. सर ये तो बड़ा ही मतलब व्हाट आई से इज ट्रस्ट, मतलब ऐसा होता है कि मतलब किसी पे नहीं हो सकता है, ना बेटा ना बेटी ना बाप ना कोई, कोई किसी नहीं पे नहीं नहीं नहीं, हो सकता। वो आपका नंबर के कारण ऐसा है। आप ये मत सोचिए कैसे क्या है, बट ये बिकॉज यू सी आई टेल यू व्हाई आई एम कमिंग टू द प्रोफेशन, बट जस्ट आई वांट टू डू करेक्ट द ऑल द नंबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज. So you are a tough lady and a bit adamant, but very workaholic. Simultaneously, you are good at occult also. Let me tell you that. By the way, your marriage is love marriage or arranged marriage? अरेंज, Arranged marriage. Okay. प्योरली अरेंज। Pure. What do you mean pure arrange? It's arrange is arrange, right? I mean, we have not met, we have Got it. met And only I got it. I got marriage. it. I'm just नहीं, making it lighter. नहीं, 1 minute, Rajkumar, this is a fantastic statement. No, in my 52 years of life, yours is a pure arranged marriage, not an arranged marriage. That's awesome. So, no, I'll बिकॉज tell सर you. शादी में पहली बार मिले, ये तो इस जमाने में तो ये पॉसिबल नहीं है सर, वो तो पहले if, जमाने के दिन चल। अगर आप लव मैरिज करते तो आपको प्रॉब्लम होता. ओके That's the point. वो लव मैरिज डिसअपॉइंटमेंट आपको वहां पे होता. ओके। That's what I and अगर लव मैरिज होता तो आपकी मैरिड लाइफ काफी चैलेंजिंग होती. That's my point. हो Okay, so सकता है। I'm coming from that point of view, not the. Okay, now coming to your profession. See, I'll tell you, as I said, your numbers are very well aligned for the occult, and occult has a very wide range, including teaching, including astro, including medical services, including vastu. In a way, what occult is helping society with Right. your effort. Okay, that's occult. And I was hearing Anilji's comment that you will not be earning more. Unfortunately, जो प्राइम occult वाले होते हैं ना, उनको ज्यादा कमाई नहीं होती. That's also reality. On those who in Vastu, Vastu is the only field where occult people earn more. So it's better also you can go to occult or you can go to teaching. See, when I saw your chart, your chart, your name correction is coming on total name is coming on number 7, which is also Okay. Ketu. You had 2 times Ketu in your chart. So there are a lot of Ketu in it. But Right. if you want to go to teaching side, you need to have a Jupiter with you. Okay. Okay. So how you can get Jupiter in your personality? Bring your name to number 3. Okay. Okay. Currently do you have some knowledge about the numerology and the name corrections? Yes, Okay, sir. good. Yes. So you bring your name to number 3. Okay. Okay. And start using more yellow articles, yellow things with you. Yellow rumali rakh lo na. क्या है? Something. सर ये अभी पता नहीं, somehow this year I'm feeling I'm getting more attracted towards every number 3 का जो भी है, but ये अभी हो रहा है. I mean earlier it was not like that, ठीक है, but अभी ठीक है. तो चलो अच्छा है, अगर ये हो रहा है तो ये अच्छी बात है. So get associated with number 3 because 3 and 7 balances the occult industry that segment very perfectly. And if you want to become a consultant or teacher, only number 1 is which is 3, which will take you over there. So your thinking is on right thing. Get used to number 3 as much as possible. Coming to your colors, your favorite color is a black. Avoid that as much as possible. I know which is not possible. It's a very practical thing. It's very easy to say than done. I know that, but try to avoid it on Saturday, Sunday, and Monday. At I least so specifically wear it on Saturday. I'm coming to that. So ये Okay. 3 दिन आप avoid करें. Rest all Okay. दिन. See, I tell you, ideally you should do this, you should do that, but it's a practical होता नहीं. Life doesn't go like that. Right. You need to balance it out. So आप कलर ब्लैक का सैटरडे, संडे एंड मंडे 3 दिन अवॉइड करें.
because number Okay. 8 के जो anti colors and sun and moon is a anti for number 8 people. From numerology point of view, don't link to the what Mangesh ji and that's it. I'll explain you what you have to do, what you should not do. So color wise, Saturday, Sunday, Monday avoid करें. Red color Okay. Sunday को avoid करें. That's it. Okay. और yeah, white color Monday को. And yeah, that's it, and get associated with number 3 and yellow as much as possible. Okay. Last year आपका Sure. कैसा रहा? How was your last year? Were you It happy was with overall good? ओवरऑल गुड. हाँ, एवरेज, मतलब ऐसा कुछ Overall good कोई. average. ये साल हाँ भी हाँ. अच्छा है. नेक्स्ट ईयर आपका Okay. फैंटास्टिक है. ये Okay. साल भी है. अगर लास्ट ईयर वाज 40%, दिस ईयर विल बी 60 to 70%. Okay. नेक्स्ट ईयर विल बी 80 to 90 or 100% आपको सेटिस्फैक्शन, प्रॉफिटेबिलिटी काफी. और नेक्स्ट ईयर तो आपका ग्रोथ अच्छा ही है. प्रमोशन है, ग्रोथ है, मतलब यू विल ग्रो योर प्रोफेशन, वैसा. तो ये सब चीजें हैं जो फ्रॉम न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू which I can share. I don't know if you got any question, you can talk to me, और जो भी कुछ है पूछ सकते हैं. नहीं सर, अभी तो ये जो सारी चीजें हैं जो मुझे नेम बहुत का ज्यादा है. कंफ्यूजन था, अच्छा, ओके, But तो आई विल करेक्ट दैट. आई विल ब्रिंग प्लीज. इट टू दीप्ति जी, हाँ, हाँ दीप्ति जी. जी देखो, आपको ना बोला गया है ब्लैक ड्रेस नहीं पहनने को, तो आप एक हाँ काम जी. करिएगा, जितने भी ब्लैक क्लोथ्स है उसको ओल्ड एज होम में नहीं दे दीजिए. नहीं ओके. I'll नहीं. tell you why. नहीं, I'm just saying why old age home. ओके, Let me ओके, say that. नंबर 8. Because Venus का नक्षत्र is Saturn. हम्म. Venus sitting in the 12th house. Right? तो आप जितना दे दोगे ना, उतना Venus will help you out in your life. ओके सर. और मुझे सर एक और चीज पूछना था. आपके ओकल्ट में आने के बाद आपके हस्बैंड के लाइफ में गेन्स अच्छे हुए? सर ऐसे तो ही डजंट बिलीव एट ऑल. अच्छा, नहीं, आई एम जस्ट सेइंग, गेन्स तो हुए ना, सडन गेन्स हुए. हाँ हाँ Sudden हाँ gains हाँ. यस 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 यस. he's traveled a lot. He's traveled overseas, traveled a lot. Not now, but yes, earlier. अभी तो वो he is not traveling, but Yeah, he अभी used to भी travel. because why I'm saying is that now more you do occult now, your हाँ. husband's second house and 11th house and 8th house gets very strong. Okay. This is our language of occult. But आप occult करिएगा, आपका occult में बहुत अच्छा growth है. I'm telling you seriously. People will Okay. know you one day saying that she is damn good. And get into teaching of occult, I'm saying, especially Vastu. That will be Okay. very beneficial. And I'm telling you that you personally will feel that this is the right place where I have to be. Sir, Destiny irony has is this brought. कि मैं Irony is कभी that. उसमें गई नहीं. मतलब Yeah, irony, I'll वास्तु tell you what. हाँ हाँ. See, क्या है ना, आपका जो बाधक planet is Mangal. So that is sitting in the 10th house. You get in with a big force. आप आ तो जाते हो, फिर क्या ना धीरे धीरे यार ये होगा, अरे ये क्या होगा मेरे से नहीं हो. तो मंगल को अलाइन करना बहुत जरूरी है. मंगल हैज टू बी अलाइन. देखो, मारक है ना, एक ही बार में मार देगा. बाधक बाधा देते रहेगा. ये तकलीफ है. आपका मंगल अगर आप देखोगे ना, इट इज सिटिंग इन द 10th हाउस, सीइंग योर लग्नेश है. Lagnesh is sitting in the 11th house, which is second house of your Mangal. तो आप सोचो मंगल का कितना बेनिफिट होगा आपका. मंगल देख रहा है 4th हाउस, राइट? सो 4th हाउस से वास्तु देखते हैं. मंगल इज सेइंग योर 5th हाउस, जहां पे आप रेमेडी देते हो. तो एक मंगल अलाइन करते हो, लॉट ऑफ थिंग गेट्स इनटू अ बेटर पोजीशन. Right, sir. Yes, I'll surely do it. Right? So this is like what is astrology about, and this is how you predict a chart. See, we couldn't take more because there was a topic of career direction what we took into act, right? नहीं तो I can guarantee you कि कल ये वक्त तो चलेगा. मनदीप जी बोलेंगे ये टाइम कल तक, तो फिर पूनम जी लेंगे, पूनम जी 2 दिन बोलेंगे, एक हफ्ता आप ये निकाल ही नहीं पाओगे, इतना इनके पास ज्ञान है बोलने के लिए. Exactly. Right? Exactly. So this is how we predict in our episodes, and I think so you are highly convinced of what you've heard.
and you would have got a better understanding now. Okay, this is what I Right. need to do in life. All right. So you will be getting the numbers of all these people. If you want to ask them, you can ask them, right? Sure, But that would be a paid stuff as per their norms and all that. But I would right. again say get the grading done by Arunji. That would be very good, huh? Vastu ke hisab se. Okay, So sir. Dipti Sure, madam, sure. thank you. Thanks to be on the show. Thanks Thank for you giving so us much. chance to Thank you so have a much, look at your everyone. chart. Thank you. Thank you, Thank you. Kriti. And, and For coming. see, Thank you. I'll Thank you, not say Dipti ji. thanks. God bless you. I'll not say thanks to the panelists because I personally feel it's their karma towards occult to do this. Yes. So मैं बोलूँगा. Right? Thank And you again. Kriti ji, one more thing. Thank you. Thanks. Before we हाँ, close, see, हम सबने रिकमेंडेशन कुछ दिया है एंड आप हाँ भी जी। इसको एनालाइज करेंगी और फिर बाद में कुछ इम्प्लीमेंट होगा, कुछ करेंगी, कुछ बाद में होगा, whatever. We expect your feedback also on this, not immediately, but after 2 months or 3 months, that will be great. Sure, sir. Sure. Pakka. Yeah, our website would be ready by that, so you Thank can you. give a feedback on that, as well as the Insta page also, right? Right. So Dipti ji, thank you. Thanks for coming. Thank you, sir. Right? Thank you, everyone. Thank you so much. And Thank you so much. thanks to my all sweet panelists. Thank you very much. We meet at the Thank next you. episode. Jai Shri Ram, Har Har Mahadev. See ya. Har Har Mahadev. Thank Right. you.